to discuss a very important topic, that is the electrochemical cell, electrochemical reactions, construction as well as the working of the electrochemical cell under the heading of electrolytic and the electrochemical, that is the galvanic or the voltaic cell. So first we take here what is the electrochemical cell. Electrochemical cell that consists of the two metal rods or the two graphite rods that are dipped inside the electrolytic solution, that is known as the electrochemical cell, where these are electrochemical cell that shows the two different types of the chemical reactions. One is the oxidation half reaction and the another is the reduction half reaction, where the net cell reaction is nothing, it is the sum of the oxidation and the reduction half reaction. So we are going to discuss here, that is one by one, how the electrochemical cell that is to be constructed and what terminologies that is to be used inside these electrochemical cell. Basically that these electrolytic cell that consist of the two electrodes, one is the anode and the another is the cathode, where these anode always that shows the oxidation reaction, while at the electrode cathode reduction reactions that will be carried out. Now say that is the anode that is positive in the electrolytic cell, then the cathode that is negative in the electrolytic cell, while these are two terminals that have been different in the galvanic cell or the voltaic cell. That we are coming, वो आप लोगों को समझ में आएगा. यहां पे सिर्फ एक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है. ये टर्मिनोलॉजी चेंज नहीं होगी, टर्मिनल्स चेंज हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अलग होगा और इलेक्ट्रोकेमिकल गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल के अंदर में वो अलग होगा. तब हम लोग बताएंगे कि ये कैसे हो रहा. बट द कंसेप्ट इज दैट at anode oxidation that is always takes place, while at cathode reduction that is always takes place. तो electrochemical cell में क्या है, that the two electrodes that have been dipped inside the solution, electrolytic solution, where the one electrode that should be a anode and the another electrode that should be a cathode. These are the metal plates or they are the graphite rod or the carbon rods. Getting this? समझ में आ रहा है आपको? बहुत क्लियर है बिल्कुल. Now we come also that the electrodes, जो electrodes की हम लोग बात करें, where say that these are electrodes where they provide the surface for the oxidation reaction as well as the reduction reaction. क्यों तो हम लोगों ने पहले ही बोला है कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की बात होती है तब वहां पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एक इलेक्ट्रोड के ऊपर और रिडक्शन हाफ रिएक्शन ये दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर होती है. गेटिंग दिस? अगर वो इलेक्ट्रोड होता है तो इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होगा, दैट प्रोवाइड्स द सरफेस वेयर सी दैट इज द डिफरेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एज वेल एज द रिडक्शन रिएक्शन दैट विल बी कैरिड आउट. इलेक्ट्रोड का मतलब ही होगा कि दैट विल प्रोवाइड द सरफेस. बराबर है, वो सरफेस प्रोवाइड करता है किसके लिए, ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन के लिए. अब ये जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर में वो कैसे होता है. सो वेरी सिंपल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल. अब यहां पे हम लोग कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करेंगे. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, हाउ दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल दैट वर्क्स. इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में या तो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. से इलेक्ट्रोलिटिक सेल वेयर द रिएक्शंस दैट विल बी कैरिड आउट ओवर हियर, दैट विल बी अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन where we are taking the electrical energy is converted into the chemical energy inside this device. When we say the electrical energy is converted into the chemical energy, then that process is known as, that is the electrolysis process. Electrolysis process के अंदर में क्या होगा, there will be a dissociation. There will be a dissociation of the electrolyte under the passage of the electric current.
when we are passing the electric current, then say there will be a dissociation of the electrolyte. Then these the process that is known as the electrolysis process. और वो जो डिवाइस होता है कि जिस डिवाइस के अंदर में होता है वो डिवाइस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल. अब अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की अगर बात अगर करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो क्या होगा. यहां पे हम लोग दो अलग अलग टाइप के सेल्स डिफाइन करने वाले हैं. वन इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड द अनदर इज द गैल्वानिक और दैट इज द वोल्टेक सेल. अब यहां पे बात को समझना है कि डिफरेंस क्या होता है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस क्या होगा और वोल्टेनिक और द गैल्वानिक सेल में डिफरेंस क्या होगा. बिल्कुल क्लियर है. अगर मैं दो अलग अलग एक पॉइंट की अगर बात अगर करूं तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल where the say non spontaneous chemical reactions that will be carried out, while in the galvanic cell where say that is the spontaneous chemical reactions that will be taken place. अब यहां पे अगर नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होगा कि ये कैसे होता है. व्हाट इज द नॉन स्पॉन्टेनियस. जब तक क्या आप इलेक्ट्रिक का करंट उसके अंदर में पास नहीं करोगे तब तक ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगी. That's why we are saying that will be a non-spontaneous. So under the passage of the electric current, then and then the reaction that will be possible over here. Correct? समझ में आ रही है. लेकिन अगर हम लोग गैल्वानिक है तो वोल्टेक सेल की बात करें तो वहां पे कंसेप्ट ये अलग है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो बेसिकली क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोलिटिक अगर सेल होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन दैट विल बी कैरिड आउट. और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस के अंदर में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कही है. बराबर है. while instead get the voltaic cell or the galvanic cell, the reactions that are the spontaneous chemical reaction where the chemical energy that will be converted into the electrical energy. वहां पे अगर मैं इलेक्ट्रोड्स की अगर बात करूं तो देखिए यहां पे एनोड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम लोग एनोड की अगर बात अगर करते हैं तो देखिए यहां पे एनोड ये जो पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रो, जैसे कि पहले ही हम लोगों ने बोला है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड ये पॉजिटिव होगा तो कैथोड ये नेगेटिव होगा. व्हाइल इनसे दैट द गैल्वानिक सेल एनोड दैट बिकम्स द नेगेटिव एंड द कैथोड दैट बिकम्स द पॉजिटिव. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. ये दो पॉइंट्स को आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट समझना है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव और गैल्वानिक सेल में एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव. लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं होगा. एनोड जो होगा एनोड के ऊपर ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैरी आउट होगी. ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होगा देयर शुड बी अ रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. अरे वो इलेक्ट्रॉन वहां पे वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, बाहर इलेक्ट्रॉन्स ये बाहर निकलेंगे. So it's a very simple that when there is a removal, then see that this is the process that will known as say that is the anodic or the oxidation process. जो ऑक्सीडेशन एनोड के ही ऊपर होता है. समझ में आ रही है. गेटिंग दिस कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कट आपके दिमाग में डाल दो कि ऑक्सीडेशन कहां पे होगा, एनोड पे. रिडक्शन कहां पे होगा, कैथोड पे. बराबर है. इलेक्ट्रोलिटिक में एनोड क्या होता है, पॉजिटिव. गैल्वानिक सेल के अंदर में क्या होगा, नेगेटिव. देखिए these are the differentiating points, these are the very important points. कंसेप्ट एक ही है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन और कैथोड के ऊपर रिडक्शन. बराबर समझ में आ रही है. गेटिंग दिस. yes, now we are coming on the construction as well as the working of the electrolytic cell. See, it's a very simple where we have been taken that the two electrodes that have been dipped inside the solution, अगर दो इलेक्ट्रोड वो मेटल भी हो सकते हैं या तो ग्राफाइट रॉड भी हो सकते हैं या तो कार्बन रॉड हो सकते हैं. हम लोग यहाँ पे ग्राफाइट रॉड और द कार्बन रॉड की बात करने वाले हैं. We are talking about so that this is a very simple construction. Say inside the one container that we have been taken the two electrodes. Okay, ये दो इलेक्ट्रोड्स आपके दिख रहे हैं. That these are the graphite rod, these are the carbon rod. Where the one rod that becomes that is the anode, where the anode is the positive terminal and the another is the cathode, where this the cathode is the negative terminal. Getting this? समझ में आ रही है. अब यहां पे देखिए हम लोगों ने यहां पे बैटरी का इस्तेमाल किया है. बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक हियर दैट इज द वन एसी दैट इज द डीसी बैटरी. हम लोग यहाँ पे डीसी बैटरी की अगर जो बात करें तो डीसी बैटरी, डायरेक्ट करंट वाली बैटरी हम लोग यहाँ पे लेंगे.
where say that this is a battery, where the positive terminal of the battery that is connected to this terminal, therefore it is a positive, and the negative terminal of the battery that is connected to this electrode, therefore it is a negative electrode. Positive electrode that is known as the anode and the negative electrode that is known as the cathode. समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखिए, अगर ये इलेक्ट्रोड्स अगर होते हैं, बराबर है, अगर ये दो इलेक्ट्रोड्स की अगर बात अगर होती है तो दो इलेक्ट्रोड्स कैसे होंगे? देखिए, that they are dipped inside the solution, where this solution is the sodium chloride that we have been taking here, that is the fused sodium or the molten NaCl solution. See, these are the electrolytic solution. अब यहाँ पे क्या होगा? Once the electric current that starts, that is the dissociation of the sodium chloride that will be carried out. Sodium chloride that will be separated as the sodium ion as well as the chloride ion. Sodium ion that will be a positively charged and the chloride ion that will be negatively charged. फिर क्या होगा? जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स that say it whatever the reaction that will be carried out, there will be a electron transfer. हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की भी बात करने वाले हैं, बराबर है? See that the oxidation और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होने वाली है. देखिए क्या होगा, कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी रिएक्शन होती है. That these are sodium positively charged ion that gets attracted towards the negatively charged cathode, and the negatively charged anion, that is the chloride ion, that gets attracted towards the positively charged anode. क्या होगा? When the under the passage of the electric current, that these are sodium that will be settled on, say that the sodium that will be deposited on the cathode, and the chlorine that will be liberated from, say that is the anode. अरे यहाँ पे अगर हम लोग बात अगर करें तो यहाँ पे सोडियम मेटल का डिपोजिशन होता है कैथोड पे, और से दैट एट द एनोड दैट वी गेट हियर दैट इज द क्लोरीन मॉलिक्यूल. क्लियर? अब दो रिएक्शंस कैसे होती है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात, रिएक्शंस की भी बात होने वाली है. अगर हम लोगों ने पहले बोला कि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन, सेल रिएक्शन जब होती है तब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है. एंड व्हेन द सम ऑफ दीज टू रिएक्शंस दैट विल बी द नेट सेल रिएक्शन, ऐसा कहा जाता है. बराबर समझ में आ रहा है? That is the oxidation and the reduction, that is the redox reaction that will be carried out. See, in the electrolytic cell, that the first, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एनोड के ऊपर क्या होगा भाई? मैंने पहले बोला क्या होगा? ऑक्सीडेशन. एनोड के ऊपर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखिए एनोड के ऊपर दो क्लोराइड के आयन जिसके ऊपर क्या चार्ज है? निगेटिव. ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बाहर निकलेंगे. देयर विल बी अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द रिमूवल ऑफ नेगेटिव चार्ज. अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात अगर होती है तो इसका मतलब ये होगा दैट विल बी अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस. अब ये ऑक्सीडेशन यहाँ पे हुआ तो ऑक्सीडेशन में ट्वाइस Cl नेगेटिव दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द Cl2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले. एट द सेम टाइम से हम लोग कैथोड के ऊपर बात करेंगे. कैथोड के ऊपर अगर बात अगर करते हैं तो पहले मैं यहाँ पे सिंपल रिएक्शंस लिखता हूं. सी दैट दीज आर सोडियम, that these are sodium ion Na positive that will gain the one electron. Gain of electron is the reduction process. and cathode के ऊपर क्या होगा? reduction. anode के ऊपर क्या होगा? oxidation. so sodium के ऊपर reduction होगा, gain of electron, that these are sodium ion that will be converted into the sodium that is sodium ion that will be converted into the sodium metal. This is the solid sodium. क्लियर? समझ में आ रही है? ये रिएक्शन कौन सी हो रही है? रिडक्शन रिएक्शन. ये कौन सी हो रही है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब इसको थोड़ा सा हम लोग बैलेंस इसलिए करते हैं कि भाई यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स कब जाएंगे? जब दो सोडियम के आयन निकलेंगे तो तब दो सोडियम, सॉलिड सोडियम आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, सोडियम मेटल. बराबर है? गेटिंग दिस? सोडियम के एटम यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, सो दैट सिंपली दैट वी आर गोइंग टू मैनेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर. क्लियर? Then we come on, so that is the net cell reaction. Net cell reaction का मतलब ये होगा it is the sum of these two. अब अगर sum of these two का मतलब अगर होगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कटे, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कटे, तो twice Na positive, twice Cl negative plus that gives sodium twice Na. आपको क्या मिल रहा है? Twice Na plus Cl2. So we are getting here that is the solid sodium over here and the gaseous chlorine over here. Clear? समझ में आ रही है? सो दिस इज द नेट सेल रिएक्शन. ये जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होगी? नेट सेल रिएक्शन, जिसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे. क्लियर? समझ में आ रही है? सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस? अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl की अगर बात अगर करें अंडर द हेडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दैट दिस होल प्रोसेस दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस.
क्लियर? द होल प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। फिर ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में मोल्टन NaCl के प्रोसेस के अंदर में हमको क्या मिल रहा है? व्हाट द प्रोडक्ट दैट यू आर गेटिंग? योर प्रोडक्ट इज पेल ग्रीन क्लोरीन गैस। कौन से इलेक्ट्रोड पे? दिस इलेक्ट्रोड एट द एनोड, while say that is the sodium, that is the silvery white sodium metal that will be deposited also, that is the cathode। यानी यहां पे बिल्कुल क्लियर है कि एनोड पे आपको क्या मिलेगा? क्लोरीन मॉलिक्यूल, जिसका कलर कैसा है? इट इज अ पेल ग्रीन कलर, इट इज अ पेल ग्रीन, दैट क्लोरीन that will be liberated at the anode, and the sodium metal, that is the silvery white sodium metal, that will be deposited at the cathode। समझ में आ रही है? ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द फ्यूज्ड और द मोल्टन NaCl सोडियम क्लोराइड। अब मैं दूसरे सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग एक्वियस की बात करेंगे, पानी के साथ जो सॉल्यूशन होगा, दैट विल बी द एक्वियस, इट इज अ मोल्टन स्टेट। दिस कंसेप्ट इज द मोल्टन। सोडियम क्लोराइड को मोल्टन मेल्टेड स्टेट में लाया गया और वो मोल्टन जो फ्यूज जिसको कहा गया उसको हम लोगों ने यहां पे लिया एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। नाउ वी आर कमिंग ऑल्सो, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एक्वियस NaCl में क्या होगा? अगेन द प्रोसेस विल बी द सेम, बिल्कुल सेम प्रोसेस होने वाली है, बराबर है। अगेन इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द फ्यूज्ड NaCl, व्हाट वी आर टेकिंग? वी आर टेकिंग द एक्वियस। सिर्फ हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? ये फ्यूज्ड NaCl के बदले में एक्वियस सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, करेक्ट? एक्वियस सोडियम क्लोराइड लेने के बाद आपको रिएक्शंस कौन सी मिलती है? बिकॉज वी आर गेटिंग हियर दैट इज द लिटिल बिट चेंजेस इन देयर प्रोडक्ट्स। उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, वो रीजन की भी हम लोग बात करने वाले हैं, isn't it? वो रीजन की भी बात करने वाले। अब देखिए यहां पे फिर से कंसेप्ट वही है, यहां पे सिर्फ फ्यूज्ड NaCl के बदले में हम लोगों ने क्या लिया है? एक्वियस सोडियम क्लोराइड। अब एक्वियस सोडियम क्लोराइड लेने के बाद फिर से अंडर द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, सोडियम क्लोराइड दैट गेट्स डिसोसिएटेड इनटू द सोडियम आयन एज वेल एज द क्लोराइड आयन। अरे बेसिक कंसेप्ट के मुताबिक यहां पे क्लोरीन मिलना चाहिए और यहां पे सोडियम मिलना चाहिए। सोडियम दैट विल बी डिपॉजिटेड ओवर हियर एंड दैट इज द क्लोरीन मॉलिक्यूल दैट विल बी लिबरेटेड एट द एनोड। ये कंसेप्ट है, लेकिन यहां पे वैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी देखिए, और क्या होगा वो भी देखिए। सी एट द कैथोड, फर्स्ट वी आर टेकिंग कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन अगर होता है तो रिडक्शन कौन सा होगा? सोडियम का रिडक्शन हो रहा है, Na पॉजिटिव दैट गेन्स द वन इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सोडियम मेटल, बराबर है? समझ में आ रही है? लेकिन जब हम लोग एक्वियस सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्वियस सोडियम क्लोराइड, यहां पे पानी भी है। अगर वाटर मॉलिक्यूल यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन तो है ही, लेकिन इसके साथ में यहां पे पानी भी है। अब ये जो वाटर होगा, दैट दिस द वाटर दैट आल्सो शोज द रिडक्शन प्रोसेस। ये पानी का भी रिडक्शन होगा, इट इज द रिड्यूसिंग वाटर, बराबर है? ये पानी का भी रिडक्शन होगा एंड पानी का जैसे ही रिडक्शन होगा, वाटर मॉलिक्यूल व्हेन इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन दैट इमीडिएटली दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोजन गैस एज वेल एज द हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए यहां पे हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होगा। यानी जब हम लोग फ्यूज्ड NaCl की बात करते हैं तो ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द सोडियम आयन एज वेल एज द क्लोराइड आयन, बराबर है? ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द सोडियम आयन एज वेल एज द क्लोराइड आयन। लेकिन जब हम लोग एक्वियस सोडियम क्लोराइड की जब बात करते हैं, when we are talking about say that is the dissociation of the aqueous sodium chloride, तो वहां पे Na सोडियम आयन तो होता ही है, क्लोराइड आयन भी होता है, और लेकिन उसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल होता है, and these are water molecule that plays a very important role over here, करेक्ट? करके हम लोगों ने देखा है कि यहां पे सोडियम आयन का रिडक्शन तो जरूर हुआ, लेकिन रिडक्शन आपका पानी का भी हो रहा है। See that is the water molecule that gets reduced over here and that will be converted into the hydrogen molecule and see that is the hydroxide ion। फिर आप बोलोगे कि सर यहां पे तो दो हो गए, दो एट अ टाइम दोनों का रिडक्शन हो रहा। फिर रिडक्शन दोनों का अगर होगा तो दोनों डिपॉजिट होते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि एज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द वाटर, मैं क्या बोल रहा हूं वो बराबर समझ लो, मैं क्या बोल रहा हूं बराबर समझ लो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द वाटर, it is the greater than the standard reduction potential of sodium।
बराबर, समझ में आ रही है? सोडियम के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से वाटर मॉलिक्यूल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है? ज्यादा है, करके इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की पहले होंगी, वो ज्यादा रिड्यूस होगा और उसके कारण यहां पे आपको जो फॉर्मेशन मिलेगा वो फॉर्मेशन कौन सा होगा? हाइड्रोजन। गेटिंग दिस? समझ में आ रही है? यानी यहां पे सोडियम मेटल का डिपोजिशन होता है, ये हमने फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड में देखा। क्यों? तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल दैट विल बी ग्रेटर देन दिस वन, सोडियम आयन, sodium, then the reducing power of this one that will be greater, करके ये रिडक्शन इसका ज्यादा होगा और ज्यादा होने के कारण आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? that we are getting the hydrogen along with the hydroxide ion. Similarly, at the anodic reaction, oxidation half reaction, और ये कैथोडिक का मतलब होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यहां पे भी एनोडिक रिएक्शन का मतलब होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड कैथोडिक का मतलब होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब यहां पे क्या होगा भाई? यहां पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होने वाला है। ऑक्सीडेशन अगर होगा तो देखिए क्लोराइड आयन, व्हेन देयर विल बी रिमूवल ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द क्लोरीन मॉलिक्यूल, है भाई? बराबर, यहां पे क्लोरीन मॉलिक्यूल आ रहा, यस। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो क्या होगा? देखिए अब यहां पे भी एक कंडीशन होगी, यहां पे भी वाटर मॉलिक्यूल होगा। वाटर मॉलिक्यूल अगर यहां पे वाटर मॉलिक्यूल अगर होगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल देखिए दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सीजन गैस, बराबर है? बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे रिमूव होते तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पे हाइड्रोजन आयंस का फॉर्मेशन होगा। दैट मींस दैट, यानी यहां पे ये भी रिएक्शन पॉसिबल होगी, बराबर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर आप बोलोगे कि सर फिर यहां पे क्या होगा? ये इलेक्ट्रोड पे क्लोरीन निकलता है क्या ऑक्सीजन निकलता है? यस, इसका भी रीजन है। यहां पे क्या होगा भाई? मेजर जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा? क्लोरीन। ऑक्सीजन बहुत निकलता तो जरूर है, लेकिन अगर हम लोग पोटेंशियल सीरीज की अगर बात अगर करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर बात अगर करें, तो से दैट इज द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दीज वाटर मॉलिक्यूल दैट विल बी ग्रेटर देन द क्लोरीन। यानी इसका रिडक्शन क्या होगा? इससे कम होगा। ऑक्सीडेशन की बात अगर होगी तो इसकी ज्यादा होगी। अगर हम लोग at anode say that is the standard oxidation potential of the water that will be greater than the chloride ion, correct? That's why see, अगर ये कंसेप्ट अगर होता है तो यहां पे ऑक्सीजन जरूर निकलता है, लेकिन क्यों तो क्लोरीन से ये ज्यादा होने के कारण यहां पे क्लोरीन ये इवॉल्व होता है। समझ में आ रही है? यहां पे दोनों वाटर मॉलिक्यूल है, दोनों वाटर मॉलिक्यूल होने के बावजूद भी हम लोग दो अलग अलग वैल्यूज की बात कर रहे हैं। one value that is related with the standard reduction potential and the another value that we are taking that is the standard oxidation, standard reduction potential की बात अगर होती है तो that show that is the upper side, और standard reduction की oxidation की अगर बात अगर होती है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप लोगों को ये पढ़ना है। समझ में आ रही है? ठीक है, तो बेसिकली अगर यहाँ पे अगर दो प्रोडक्ट्स अगर इस तरीके से निकलते हैं तो हम लोग यहाँ पे नेट सेल रिएक्शन लिखने वाले। सी दैट इज द नेट सेल रिएक्शन का मतलब होगा कि एनोड के ऊपर कौन सी पॉसिबिलिटी है? ये रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, और कैथोडिक रिएक्शन के ऊपर कौन सी पॉसिबिलिटी है? ये रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। एंड दैट्स व्हाई से दैट दोनों का जो सम होगा वो दोनों का सम हम लोगों ने क्या लिखा? ट्वाइस Cl नेगेटिव प्लस ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हम लोगों ने कैंसिल किए, फिर क्या मिलता है? लेफ्ट हैंड साइड ट्वाइस Cl नेगेटिव प्लस ट्वाइस H2O दैट गिव दैट इज द Cl2 प्लस H2 प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव, बराबर है? यानी अब अगर मैं यहां पे प्रोडक्ट्स की बात करता हूं, अगर मैं यहां पे प्रोडक्ट्स की अगर बात अगर करता हूं तो यहां पे बिल्कुल क्लियर कट है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है, ये जो गैस होगा, ये गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे निकलता है? कैथोड पे। सो दैट द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दैट विल बी लिबरेटेड एट द कैथोड, व्हाइल सी दैट द क्लोरीन गैस, यहां पे आपको ऑक्सीजन भी मिलता है, लेकिन मैंने पहले ही बोला कि स्टैंडर्ड
oxidation potential of the water is greater than the chloride ion. मैं यहाँ पे दो अलग अलग टर्म, फिर बोलोगे कि सर यहाँ पे भी तो वैसे ही बोला था, तो हाइड्रोजन के लिए बोला था, यहाँ पे मेरे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करता हूं करके यहाँ पे क्लोरीन लिबरेट ज्यादा होगा, ये ध्यान में रखिए. एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दैट दीज द क्लोरीन मॉलिक्यूल दैट विल बी लिबरेटेड एट द एनोड. एंड एनोड पे क्या होगा? क्लोरीन. और कैथोड पे क्या होगा? यस, दैट विल बी हाइड्रोजन. समझ में आ रही है? एक और पॉइंट है, और वो पॉइंट यहां पे देखिए कि अगर रिएक्शंस की अगर बात करें तो यहां पे हाइड्रोक्साइड आयंस बाहर निकलते हैं. वैसे दैट दीज हाइड्रोक्साइड आयंस, और जैसे कि ये कैथोड के ऊपर जब रिएक्शन होती है तो सोडियम आयन जो होंगे, यहां पे डिसोसिएशन होगा तो सोडियम आयन भी होंगे. दैट दीज आर सोडियम आयन एंड दीज आर हाइड्रोक्साइड आयन दैट विल बी कंबाइंड ओवर हियर एंड दिस विल गिव दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड. यानी यहां पे जैसे सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट होगा, सोडियम आयन हो गए, सोडियम आयन कहां पे जाएंगे? सोडियम आयन दैट विल बी कंबाइंड विद दैट इज द हाइड्रोक्साइड आयन एंड अलोंग विद दिस हाइड्रोक्साइड आयन दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सोडियम हाइड्रोक्साइड. करेक्ट? समझ में आ रही है? तो दैट दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ electrochemical cell and the electrochemical reaction under the heading of say that is electrolysis process, electrolytic cell. बराबर है? ये इसमें हम लोगों ने देखा कि how these electrolysis of the molten NaCl or the fused sodium chloride that will be carried out, and we have been taken here that is the second, that electrolysis of aqueous sodium chloride. समझ में आ रही है? सिर्फ प्रोडक्ट्स अलग है. मोल्टन NaCl में प्रोडक्ट क्या मिलता है? दैट द ग्रीन पेल ग्रीन क्लोरीन गैस that we are getting at the anode, and see that is the silvery white sodium that is at the cathode, while in this case hydrogen gas that will be at the cathode and say that is the chlorine gas that will be at the anode. और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं वो सोडियम के साथ कंबाइन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं. ओके, so the remaining that we take in the next video. Okay.